स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। 3.2 में हमें क्वेश्चंस किस बेस पे दिए हुए। सो दस वी सी हियर व्हाट इज द कांसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन 3.2, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, राइट। तो जैसे हमने 3.1 में लर्न किया कि टेंजेंस थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। नाउ वी आर गोइंग टू सी थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। सो देयर आर टू कंडीशंस ऑफ टचिंग गिवन हियर. So two circles are touching externally. Can you see here? Two circles with center A and B are touching externally. मतलब बाहर से एक दूसरे को point T पे टच करे। वो एक लाइन देखिए पास हो रही है वहाँ पे। Line L is passing through the point T, and the point T is the touching point, externally touching point of these two circles. So one had two circles are touching externally. Other is two circles touching internally. See. One bigger circle, and in the inside that we are having a smaller circle. So bigger circle is center is A and the smaller circle center is B. Both are touching internally. मतलब one circle is inside the other circle, right? So internally, can you see the line is passing through a point T? So point T is a common for with center A and the center B circles and the line also. तो इस point से वो पास हो रहे, टच हो रहे, ठीक है। चलिए तो अभी हमें यहाँ पे क्या कंसेप्ट यहाँ पे मिलेगा, क्या प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू गेट हियर। देखिए, इफ टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी टचिंग एक्सटर्नली इन पॉइंट टी पे अगर टच करते होंगे तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू गेट द सेंटर्स। ये दो जो सेंटर है ए एंड बी एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन द सेम लाइन lying on the same line, or it is called to as a collinear points, right? So we have written A dash T dash B. It shows these all A, T, B points are collinear points. We can write the reason when you're writing when two circles are touching like collinear. You write the reason like this: centers of two externally touching circles and the point of contact are collinear. ये collinear हो जाएंगे. So when they become a collinear, so we can add. So AB क्या हो जाएगा आपका? AB will be AT plus TB. AB will be AT plus TB, and AT is the, you can see it's a radius of this circle with center A, and it is also presented with R1, and TB is the radius of the circle with center B. It is represented by the length here R2. So can we say the distance between centers will be R1 plus R2? ये हमें यहाँ पे क्वेश्चंस भी यूज करना है। अगर दो सर्कल टचिंग एक्सटर्नली कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? The distance between their centers will be sum of the radii, means R1 plus R2 हो जाएगा। उनके जो रेडियस दिए होंगे उनको प्लस किए होंगे। तो आपको एग्जांपल में से क्वेश्चन आएंगे, टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली एंड their radii are 3.5, 2.7. What is the distance between their center? तो इसे आपको R1 लेना होगा, इससे क्या होगा R1। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस between their centers equals to, for example here RB is AB is R1 plus R2, तो आप यहाँ पे प्लस कर देंगे 3.5 plus 2.7, ये हो गया आपका, देखिए 12 5 6.2 सेंटीमीटर। If it is given in centimeter, right? So the distance between centers of two circles when touching externally क्या हो जाएगा? sum of the radii, उनके रेडियस का प्लस होगा, ये आपको करना है। In some cases आपको रेडियस नहीं दिया रहेगा, रेडियस will be not given, डायमीटर दिया रहेगा। डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर E is 6 centimeter and the diameter of circle with center B is 10 centimeter. What is the distance between their center? तो डायमीटर दिया रहेगा, फर्स्ट फाइंड आउट दी रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे? वहाँ पे रेडियस कैसे निकालोगे आप लोग? तो रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा R equals to diameter upon 2. तो रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। वहां से डायमीटर दिया रहेगा, रेडियस फाइंड आउट करेंगे एंड रेडियस को प्लस कर देंगे तो वी विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो ये आपको एक्सटर्नल टचिंग में याद रखना है। बाहर है तो सर्कल एक्सटर्नल बाहर है, मतलब तो क्या करना है, उनको ऐड करना है, ज्वाइन करना है, तो प्लस आएगा। आप यहाँ पे टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली का आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे कैसे हो जाएगा। सो टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली इन पॉइंट T. So ABT means their centers and the point of contact or collinear। जैसे यहाँ पे हुआ था सेम स्टेटमेंट यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमने एक्सटर्नली वर्ड यूज किया था, यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? इंटरनली।
सेंटर्स ऑफ टू इंटरनली टचिंग सर्कल्स एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर कोलिनियर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो ए बी टी आर ऑन द सेम लाइन पे आ जाएंगे। सो वी कैन से हियर आर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, देखिए सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैसे होगा, ए टी होगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हो जाएगा, और बी टी इतना होगा। सो ए टी में से बी टी को अगर माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, ए बी, तो वो यहाँ पे ए बी लिखा हो, ए बी इज ए टी माइनस बी टी। और यू कैन से अगर R1 is the radius, R1 is the radius of circle with center A, बिगर सर्कल का अगर वो रेडियस है R1 और स्मॉलर सर्कल विद सेंटर B का रेडियस R2 है, तो आप देखिए ये R1 हो जाएगा। R1 में से अगर ये R2 को माइनस करेंगे, R1 माइनस R2, तो ये आपका AB का डिस्टेंस बच जाएगा। सो AB इक्वल्स टू R1 माइनस R2। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखिए आपको याद रखो, कहीं कहीं आपको दिखा भी रहेगा, इंटरनली टचिंग करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स हो जाएगा डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियाई के बीच का डिफरेंस। अब अगर आपको जैसे एक सर्कल दिया, उसका रेडियस है R1 सपोज 2.5 सेंटीमीटर और R2 है आपका 4.5 सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे सर R1 माइनस R2 तो हमने फॉर्मूला में लिखा है, तो 2.5 माइनस 4.5 अगर माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। यस नेगेटिव में आएगा, बट नेगेटिव में रेडियस होगा नहीं, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिगर माइनस स्मॉलर, मतलब R1 जरूरी नहीं कि ये R1 ही हो, जो बिगर होगा वो R1 नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं इसे, ये R2 भी हो सकता है, इसे R1, ये चेंजेबल है, राइट। तो ऐसे केस में अगर आपको ऐसा लगे तो इसे मॉड में भी लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, ये मॉड में। अगर आपने लिखा है 2.5 माइनस 4.5, ठीक है, हो जाएगा, आंसर आएगा, देखिए आपका 2 आ जाएगा, राइट। तो 2 माइनस 2 होगा, लेकिन जब मॉड से बाहर आएगा आपको पता है ये, तो ये 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप याद रखिए बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस, ओके। इस तरह से हम क्या करेंगे, इंटरनली टचिंग सर्कल के सर्कल के सेंटर्स के डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, उनके रेडियस का डिफरेंस, और यहाँ पे एक्सटर्नली में क्या होगा, उनका प्लस होगा। तो एक्सटर्नली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉलर प्लस बिगर और बिगर प्लस स्मॉलर, बट आप जब डिफरेंस करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो आपको ध्यान देना कि माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट, अब ये जो आपने ये कंसेप्ट देखा, ये जो प्रॉपर्टी या थ्योरम बोल सकते हैं, जो अभी हम ये लर्न किए, राइट, वी आर गोइंग टू यूज इन प्रैक्टिस सेट 3.2, ओके। चलिए चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो जो हमने, ठीक है, कंसेप्ट के लिए यूज किया था, प्रॉपर्टी के लिए यूज किया था, उसी पे हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली एंड देयर रेडियाई आर गिवन। तो लेट कर देंगे यहाँ पे, लेट R1 इज 3.5 सेंटीमीटर, R2 हो जाएगा आपका 4.8 सेंटीमीटर, राइट। तो आप इसके बाद ये डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, सेंटर्स ऑफ टू इंटरनली टचिंग सर्कल्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर कोलिनियर, तो बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट दिस आंसर, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ R1 कितना है, 3.5 माइनस 4.8। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो बिगर माइनस स्मॉलर, 4.8 माइनस 3.5 करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB हो जाएगा, देखिए 4.8 माइनस 3.5। अगर यहाँ पे नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे कीजिए, 4.8 फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, माइनस 5, 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 3 1, तो आंसर इज 1.3। सो राइट हियर माइनस 1.3 मॉड ऑफ, ये बाहर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस 1.3 सेंटीमीटर। ये कैसे कर सकते हैं, कि आपको ऐसा ये मॉड वाला रॉन्ग लग रहा है, ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है, नहीं हो पाएगा, तो सीधा आप लिखो यहाँ पे AB इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें R1 माइनस R2 हमने फॉर्मूले में लिखा है, बट यहाँ पे देखिए बिगर कौन है, ये R2 बड़ा है, तो आप लिखिए R2 माइनस R1, ठीक है। यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द स्मॉलर एंड द बिगर रेडियस, ये यहाँ पे लिख दो। R2 हो गया 4.8 माइनस 3.5, माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर अगर दिया है, तो AB हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे डायग्राम था इसलिए हमने AB यूज किया, अदरवाइज यू कैन राइट हियर
डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ए बी जगह पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू इंटरली टचिंग सर्कल इक्वल्स टू R2 माइनस R1 1.3 सेंटीमीटर्स। डायग्राम से रिप्रेजेंट करना तो डायग्राम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, जब टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली सो वी नो दैट, ये डायग्राम से देखिए क्या आंसर मिला था, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज सम ऑफ द रेडियाई AT प्लस TB मींस R1 प्लस R2। तो यहाँ पे रेडियस आपको दिया हुआ ऑलरेडी, कितना दिया देखिए 5.5 और 4.2, तो यहाँ पे हो जाएगा AB R1 है 5.5 प्लस 4.2, तो आंसर आपका आ जाएगा देखिए ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप यहाँ पे रीजनली लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल्स टू R1 प्लस R2, एंड यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 इजी है। थर्ड वन में भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट भी करना है प्लस ड्रॉ भी करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाय स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दिया हुआ है, इफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, सी इट इज 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, देयर आर टू सर्कल्स, ड्रॉ फिगर ऑफ दीज सर्कल्स टचिंग ईच अदर। तो हमें क्या करना है, दोनों सर्कल्स को ड्रॉ करना है एंड टचिंग ईच अदर। सो कंडीशन क्या दी यहाँ पे देखिए, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, तो हमें ऐसे दोनों सर्कल को ड्रॉ करना है जो एक्सटर्नली भी टच करे, जैसे ये टचिंग एक्सटर्नली हो गया आपका, और इंटरनली भी टच करे, मतलब इसके अंदर से भी एक टच करके ऐसे, जैसे हमने नोट्स में देखा था। इस तरह से हमें क्या करना है, ये दो सर्कल को ड्रॉ करना है। तो पहले हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल एक्सटर्नली, व्हेन टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली। चलिए, तो उसमें क्या बोले हैं, रेडियस हमें कितना लेना है, रेडियस वी हैव टू टेक 4 सेंटीमीटर एंड 2.8। चलिए पहले 4 सेंटीमीटर एक रेडियस लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये एक्चुअली आपको सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे इंचेस में है, बट आपको ये अज्यूम करना है कि ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ड्रॉ करते समय आपको टेक्स्ट बुक में स्केल से सेंटीमीटर लेना है। तो कभी भी सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले आप एक पॉइंट ले लीजिए, सो उससे क्या होगा, आपका सेंटर फिक्स हो जाएगा। कभी मान लो आपका कंपास इधर उधर गया भी तो यू कैन गेट इट, दिस वन वाज द सेंटर। चलिए अभी यहाँ पे रख के हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे स्लिप कर रहा है थोड़ा सा, ये यहाँ पे और आगे पीछे, तो ट्राई करते हैं ये सर्कल बने। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया आपका सर्कल रेडी। ठीक है, ये उसका हो गया सेंटर। चलिए, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अभी बना लेते हैं इसके लिए भी, इंटरनली के लिए भी हम लोग वही, क्योंकि हमें दोनों बनाना है ना, 4 सेंटीमीटर के 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे फॉर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो इसके लिए भी बना के हम लोग रेडी रखते हैं। ये चलिए इसका सेंटर हो गया। इंटरनली के लिए हम ये 4 सेंटीमीटर वाला एक रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए बन गया, ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, वी हैव टू टेक 2.8 सेंटीमीटर एज अ रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये स्मॉलर सर्कल हो जाएगा। देखिए हम लोग 2.8 का एक रेडियस ले लिया। ओके, अब चलिए यहाँ पे एक्सटर्नली टच होना चाहिए, एक्सटर्नली। तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो सेंटर यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक्सटर्नली टचिंग जो सर्कल होगा स्मॉलर सर्कल, उसका सेंटर ढूंढेंगे। तो सेंटर कैसे ढूंढेंगे, तो ये जो आपका कंपास का स्टील पॉइंट होगा ये सर्कल पे रखिए एंड यू गेट अ सेंटर। ये आपका, ये देखिए सेंटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए। अब ये यहाँ पे स्टील पॉइंट यहाँ रखेंगे एंड विल ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल। ठीक है, ये थोड़ा
इसका सेंटर यहाँ पे चेक कर दीजिए, यस करेक्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हो गया, तुम लोग बोल सकते हैं नाउ वी कैन से हियर these are the two circles touching externally। तो इसे हम ज्वाइन करते हैं इनके सेंटर्स को, देखिए इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया, तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो भी उसी पे आ रहा है, तो वी कैन से लेट दिस सेंटर ए, सर्कल सेंटर ए एंड दिस सर्कल सेंटर इज बी एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज टी टचिंग, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसे देखें तो इसका रेडियस था 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ईयर टू ईयर और इसका था 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, ड्रॉ द फिगर ऑफ दीज सर्कल्स टचिंग ईच अदर, ओके। और इसका अगर हमें कैलकुलेट करने बोले तो भी हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक्सटर्नली हो गया, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए टी प्लस टी बी, क्यों ऐड किए, हमें पता है व्हेन टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड देयर सेंटर्स आर कोलिनियर, यू कैन राइट द रीजन फॉर दिस। सो ए बी यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 4 प्लस 2.8 दैट इज 6.8 सेंटीमीटर, ये हो गया द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये जो ए और बी सेंटर्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो मिल गया आपको 6.8 सेंटीमीटर। नाउ ये एक्सटर्नली हो गया, नाउ वी गो फॉर इंटरनली। तो ऑलरेडी हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ किया है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए उसे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ऑलरेडी हमने 2.8 लिया हुआ था, चलिए अभी इसमें क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आप इसे रखिए, पहले मुझे पता है कि यहाँ पे से टच होके जाएगा तो ये सेंटर हो जाएगा आपका, तो हम यहाँ पे रखेंगे। अभी ये यहाँ पे रख के देखिए ये टच करेगा, थोड़ा स्किप हो रहा है यहाँ से, आप देखिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो आप नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये उसका सेंटर था, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर हो गया, मीन्स ए सपोज, और इसको समझ लीजिए, चलिए इसे अलग अलग कर लेते हैं, इसका सेंटर पी और इसका सेंटर क्या लेते हैं यहाँ पे क्यू, ओके। अगर जहाँ पे टच करा अगर वो पॉइंट सी हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देखिए अगर इसे हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन हो जाएगी, राइट, सो कोलिनियर हो जाएंगे। सो वी कैन से PC, PC आपका क्या हो जाएगा, PC इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ये कितना था आपका 4 सेंटीमीटर, एंड QC इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, कितना था 2.8 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन इज हियर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन PQ मींस देयर सेंटर्स। सो वी नो दैट, ओके, 4 minus 2.8, 4 में 2.8 माइनस करेंगे वी गेट PQ, ठीक है, differences of the two radii, so we can say here PQ will be क्या हो जाएगा PC minus QC। यहाँ पे हम लोग रीजन लिख सकते हैं when two circles are touching internally the centers and their point of contact are collinear। तो PC क्या है, रेडियस 4 minus 2.8, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी हम लोग अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1.2, ठीक है, 1.2, तो दिस आंसर विल बी 1.2 सेंटीमीटर, ओके। द डिफरेंस इवन यू कैन गेट फॉर दिस आल्सो, PQ को ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग R1 minus R2, 4 minus 2.8, ठीक है, जिसे हमने सॉल्व किया, पर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसी तरह से आपको करना है, अपने ट्रिक देखा कहाँ पे रख के मैंने कैसे सर्कल ड्रॉ किया, सो एक्सटर्नली हो गया और ये क्या हो गया आपका इंटरनली, ठीक है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए इन अ फिगर, ओके, सर्कल्स विद सेंटर्स P and Q, यहाँ पे देखिए 2 सर्कल्स है, सेंटर्स P and Q
touch each other at point R. अब ये डायग्राम देख के आपको क्या लग रहा है? They are touching externally और internally? Externally. ये externally at point R पे क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं. A line passing through R. ठीक है? एक लाइन है जो R से पास होके जा रही है. Through R meets the circle at point A and B. A और B पे कहाँ पे हो रही है? वो सर्कल पे मीट कर रही, मिल रही, respectively, right? So हमें क्या करना है? अब we are having 3 questions. First, प्रूव करना है AP is parallel to BQ. जो AP है वो BQ के पैरेलल है कि नहीं, right? Second, triangle APR similar to RQB. Okay? If angle RQB is given, find out if angle PR is 35. मतलब ये 35 दिया तो आप ये RQB निकालो. तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. अगर मुझे AP पैरेलल टू BQ करना है, मतलब देखिए ये AP और ये BQ, राइट? AP एंड दिस वन इज BQ. अगर इसे मुझे पैरेलल करना है तो ये देखिए उसका ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा. PQ इज अ ट्रांसवर्सल, राइट? एक PQ ट्रांसवर्सल होगा यहाँ पे और एक AB भी ट्रांसवर्सल होगा. ओके, समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना अभी यहाँ पे, ये देखिए ये एंगल अगर हमने प्रूव कर दिया congruent, so angle PAB and ABQ are alternate angles. तो अगर हमने ये एंगल सेम कर दिया, सपोज ये x और ये x आ गया congruent, so we can say AP is parallel to BQ. अब ये एंगल इसके सेम आ गया, इसके कहाँ पे था? देखिए इधर पे, ये क्या हो जाएगा? AP parallel to BQ. और ये सिमिलर कैसे करेंगे? ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा इस यहाँ से, और ये एंगल हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये दो एंगल मिल गए, इस ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके भी हो गए ट्राइंगल के. सो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर. ठीक है. और फिर उसके बाद RQB फाइंड आउट करने बोला. PR is 35. अगर ये 35 होगा, ठीक है, तो ये 35 होगा तो इसके कॉन्ग्रुएंट ये भी 35 हो जाएगा. सो दीज आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल. तो अपोजिट एंगल भी सेम आएंगे, तो ये भी हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35, 35, 70, 180 में 70 माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 110. ठीक है. इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे. दिखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है. ठीक है. इसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन ही हमें सॉल्व करने वाले हैं, प्रूफ जैसे क्वेश्चन है. बाकी तो आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखे कितने इजी थे. चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रूफ में. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर. चलिए पार्ट वाइज करते हैं. पहले ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल PAR. ठीक है. ये ट्राइंगल को देखिए PAR. सो कैन वी से हियर sec PA congruent sec PR. क्या रीजन डालेंगे यहाँ पे? रेडियस ऑफ सेम सर्कल. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल. रेडियस ऑफ सेम सर्कल. ठीक है. चलिए these two are same, तो opposite angles also will be same, right? तो यहाँ पे बोलेंगे एंगल PAR is congruent to angle PRA. रीजन आ जाएगा क्या बोलेंगे यहाँ पे? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. ठीक है. इट्स कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. When two sides are equal, their base angle also equal. अब यहाँ पे करते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं, लेट PAR equals to PRA equals to x. से हम बोलते हैं ये किसके इक्वल है? x के. से देंगे नंबर 1 और यहाँ फिल भी करते चलते, ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x. Now can we say here, देखिए एंगल PRA is congruent with angle BRQ, vertically opposite angle. देखिए ये vertically opposite हो रहा है. ठीक है. So we can say angle PRA is congruent to BRQ. यहाँ पे रीजन क्या देंगे? यहाँ पे हम लोग देंगे vertically opposite angle. चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना. यहाँ से ये PRA कितना है? PR ये दोनों इक्वल है, राइट? दीज टू एंगल्स किसकी इक्वल है? x के. तो PRA यहाँ पे आपको मिला. अगर PRA x है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? x. सो कैन वी से हियर देयरफॉर PRA equals to BRQ equals to x. और इसको नंबर देंगे हम लोग
2 और यहाँ पे रीजन देंगे फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1 से ये x आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखिए ये, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू x कैसे आई इसे आपको ध्यान देना। तो ये भी x हो जाएगा। अब ये x हो गया, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे पहुंचना है। ये जब तक सेम नहीं होगा तो ये पैरेलल होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रायंगल चेंज करेंगे, लिखते इन ट्रायंगल BQR, इन ट्रायंगल BQR कैन बी से sec BQ congruent to sec QR। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल देखते हैं उसके। अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, साइड की ये दोनों सेम हो गए, तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। सो कैन बी से हियर एंगल BRQ is congruent to angle QBR। एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, QBR, राइट। रीजन यहाँ पे क्या डालेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको सेम हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, ये दो साइड सेम था तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा, मींस BRQ और QBR। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें क्या यूज करना है, सो कैन बी से एंगल BRQ इक्वल्स टू एंगल QBR इक्वल्स टू x। बोलिए कैसे आएगा यहाँ पे, ये देखिए ये BRQ आपको x मिला है, जब BRQ x मिला है तो BRQ यहाँ भी है, तो BRQ किसके इक्वल है, QBR के, तो BRQ और QBR क्या हो जाएगा, x, मतलब QBR की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, x। सो देखिए आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए। सो वी कैन से एंगल BRQ एंड एंगल QBR आर अल्टरनेट एंगल्स बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या हमारा अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी है। सो वी कैन से देयरफॉर sec AP पैरेलल टू sec BQ। यहाँ पे रीजन डाल दो आप, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। ठीक है, AP इज पैरेलल क्या हो गया, AP इज पैरेलल टू BQ बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। नाउ फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए इसी भी नंबर हम देख के रखते हैं, नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट में ये लेना है, इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB। क्या है, दो ट्रायंगल RQB। देखिए एंगल ये ऑलरेडी इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो चलिए ये यूज कर लेते हैं। एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। क्या लिखेंगे, QBR, राइट। देखिए PAR और QBR कितना है, दोनों की वैल्यू x है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका रीजन नीचे लिखता हूँ, ये यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखेंगे each of x। ठीक है, each of x डिग्री भी लिख सकते हैं आप। चलिए एंड सेकेंड एंगल क्या मिलेगा आपको, देखिए ये वाला PRA is congruent to QRB। इसे तो ऑलरेडी हमने लिखा भी था, चलिए एक बार और लिख देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए ट्रायंगल हो गया आपका सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल APR सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा था यहाँ पे, RQB। इसे आप लिखेंगे बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। क्या लिखेंगे, ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। चलिए ये हो गया आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। नाउ थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इफ एंगल PAR इज 35 डिग्री, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल RQB हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए RQB फाइंड आउट करना है। अब सिंपल देखिए PAR मतलब ये हो गया PR 35 डिग्री। अब देखिए PR क्या है, X है, जहां भी X है सब 35 हो जाएगा, राइट। सो PAR इज 35 डिग्री, देयरफॉर वी कैन से PAR इज इक्वल्स टू X, PAR इज इक्वल्स टू X एंड X क्या है वहां पे 35 हो जाएगा। PAR इक्वल्स टू X इक्वल्स टू 35, therefore we can say directly angle BQR equals to QRB किसके इक्वल है X, और X की वैल्यू कितनी मिली 35 डिग्री, ठीक है। चलिए इसे हम नंबर 4 दे सकते हो आप यहाँ पे, और इसे लिख सकते हो फ्रॉम 4, ओके। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे ऐड कर लेते हैं। सो हाउ यू आर गोइंग टू ऐड, सो यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BQR, तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एंगल RQB, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका एंगल RQB प्लस ये दोनों क्या है यहाँ पे X प्लस X इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, या वैल्यू यहाँ पे रख सकते थे, ये हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या डालेंगे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये x की वैल्यू हो जाएगी 35 प्लस 35 70, यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। चलिए इसे RQB यहाँ पे हो जाएगा 35 प्लस 35 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी क्या करना पड़ेगा से हम ऐड करके माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ नीचे लिखेगा नहीं आपको, तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका अगला स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, एंगल RQB प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180, राइट। देयरफॉर RQB हो जाएगा आपका 180 माइनस 70 डिग्री, तो RQB कितना आ जाएगा आपका 110, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। तो इस स्टेप के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कर लेना, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं था तो हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन तो थोड़ा लेंथी लग रहा है, देखिए यहाँ पे 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, बट इम्पोर्टेंट भी है। पार्ट वाइज अगर आप सब देंगे तो इजी होगा। फर्स्ट ट्रायंगल ये वाला लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, दूसरा ट्रायंगल, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या करेगा उसे सेम कर रहा है, इस तरह से। और x ले लेंगे तो इजी हो जाएगा क्योंकि आपको x कॉन्ग्रुएंट दिखेगा, राइट। और एक बार इसकी वैल्यू दी है 35, तो हम दूसरी वैल्यू भी निकाल लेंगे। एग्जाम में कभी इसकी जगह दूसरी वैल्यू देगा तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस कहने का मतलब है कि एक बार आपको समझ में आ गया है दिया है क्या है क्वेश्चन में, सो इट इज इजी टू सॉल्व अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए हाय फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे 2 सर्कल्स with center A and B. Can you see here 2 circles with center A and B touching externally at point E. At point E पे क्या करे, वो टच करे। देखिए यहाँ पे ये उनका point of contact है, okay. And there is a line L. This line L is also called to be a tangent. It is a tangent, ठीक है। This is tangent to both circle, common tangent. So at point C and point D, line L is a tangent. This circle at point C and this second one at point D, okay. So what is given here, so here it is given the radius of 2 circles, right, 4 centimeter and the 6 centimeter. So smaller one is this circle, so radius will be 4 centimeter for this, and the bigger one is this one, so 6 centimeter for this circle, right.
Okay, so BD and AC, can you see it is a radius of the circle. So here we have to find out the length of CD. See here, this tangent, can you see here, the length of CD we have to find out. तो अभी क्या करना चाहिए हमें, जैसे here, तो पहले ये कंस्ट्रक्शन करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, AC and BD is not given, right? So we'll write in construction. Let us start here. First construction you write. Okay. So draw radii. You can say radii. Say draw radii AC and BD. You get AC and BD. Also you have to draw AF perpendicular to BD. AF perpendicular to BD हमें ये draw करना है. Okay. चलिए. Then start here. What you can see here? See, AE and AC are the radius of circle, same circle. So we can write here AE equals to AC equals to 4 centimeter. AC and AE are the radius of same circle, तो ये 4 centimeter हो जाएगा. What about BD and BE is also radius of the same circle. This is the bigger circle, you can see. BD, see here, BD and BE equals to 6 centimeter. So we can write the common reason for this, radii of same circle. क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. तो देखिए ये 6 था, तो AB कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर. देन व्हाट अबाउट द लेंथ AB, लेंथ AB हो जाएगा टोटल 10 सेंटीमीटर. चलिए उसे AB को भी यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग. सो देयरफॉर AB will be equals to AE plus EB. AB will be equals to AE plus EB. Why we can add? We can say because AEB are collinear points. Why AEB are collinear points? How can you say AEB are collinear points? Because we know that when two circles are touching externally, okay, the centers, their centers and the point of contact are collinear. So you can write for this, you also write the reason here. एक स्टेप और भी यहाँ पे लिख सकते थे, A dash E dash B. Then you write when two circles touching externally, the point of contact and their centers are collinear. Then you use this one, okay? Or you can write this also. चलिए, what is value of AE? AE is देखिए 4 plus EB is 6, so you will get 10 centimeter. So AB हमको कितना मिल गया, 10 centimeter. We got AB as a 10 centimeter. चलिए next. अभी क्या करना, देखिए यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि AF is perpendicular to BD. ओके, ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. ये हो गया 10, AB हो गया 10 और BF भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, देखिए जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो दिख रहा है ACDF will be a rectangle. Why? See, this angle is 90, this angle is 90. Why 90? Radius is perpendicular to tangent and radius here also perpendicular to the tangent. तो ये 90 हो जाएगा. और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में 90 किया हुआ है, राइट? परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो ये 90 हो गया. तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स 90 90, ओके, ये भी 90 हो गया. तो फोर्थ वन आल्सो विल कम 90. तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो AC विल बी इक्वल्स टू DF. तो ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4. ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. सो टोटल इज 6. सी DB is 6, DF is 4. तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर. सो FB is 2 सेंटीमीटर एंड द AB is 10 सेंटीमीटर. तो ये देखिए ये 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस. AB will be hypotenuse. By using Pythagoras theorem we can find out AF. और जैसे AF मिलेगा, AF equals to CD. So our aim is to get the length CD. इस तरह से हमें लेंथ CD मिल जाएगा. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम पहले से प्रूव करेंगे कि ये क्या है, रेक्टेंगल. So we'll write here in quadrilateral ACDF. Okay. So angle C equals to angle D equals to 90 degree. You can write tangent theorem. आप यहाँ पे लिख दो रीजन, by tangent theorem. क्या लिखेंगे, by tangent theorem. Okay. Angle F is 90 degree. यहाँ पे रीजन क्या आएगा,
फ्रॉम कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन से इसे लाया है, राइट। देयरफॉर अभी लास्ट वाला भी आप बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यू कैन से रिमेनिंग एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ quadrilateral. So therefore we can say quadrilateral ACDF is a rectangle. ये क्या बन जाएगा आपका rectangle। अभी rectangle बन गया तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे AC equals to DF हो जाएगा। So right here AC equals to DF equals to 4 सेंटीमीटर, डायरेक्ट भी लिखेंगे क्योंकि AC 4 है और AC DF के इक्वल है, तो DF भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। So here you write there is an opposite sides of a rectangle। क्या बोलेंगे, opposite sides of rectangle। Okay, चलिए now we look at the second part। हम चलते हुए यहाँ पे, so DF हो गया 4, so can we write here DF plus FB equals to DB। किसके इक्वल होगा वो, DB की। क्यों हम ऐड कर पाए यहाँ पे, because these points are collinear। which one, DFB, ये क्या हो गया आपका collinear। so we can add what is the value of DF4, FB is not given, right। और DB कितना हो गया हमें 6। ये देखिए DB हमने यहाँ पे लिखा हुआ था BD 6 सेंटीमीटर। so therefore यहाँ पे हो जाएगा FB will be हो जाएगा 6 minus 4, it comes 2 सेंटीमीटर। so FB हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हमें मिल गया 2 सेंटीमीटर FB। now can we use Pythagoras in this triangle? yes। so write in triangle which one, AFB एंगल F क्या है आपका 90 डिग्री। ओके, सो कैसे हो जाएगा, देखिए ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज गिवन, सो वी राइट वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। AF स्क्वायर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये 90 हो गया, ये AF और ये B, ये आपका 10 है, ये आपका 2 आ गया। ये देखिए वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, यहाँ पे बाय पाइथागोरस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलिए नाउ वैल्यूज को रखते हैं। यहाँ पे AF कितना है नहीं दिया हुआ है, चलिए FB कितना दिया है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और AB कितना है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AF स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 100। तो AF स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 100 माइनस 4, ठीक है। तो 100 माइनस 4 कितना आएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ F इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 96। तो यहाँ पे लिखोगे 90, F स्क्वायर इक्वल्स टू 96। ओके, AF कितना हो जाएगा फिर, AF हो जाएगा रूट ऑफ 96। अब देखिए 96 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट वी कैन डू फॉर दिस, हम 96 को फैक्टराइज कर सकते हैं। 96 को फैक्टराइज करके देखते हैं, पेयर्स ऑफ मिलेंगे तो उसे हम बाहर ले लेंगे। सो 2 4 जा 8, इधर हो गया 16, 2 8 जा 16, राइट। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, राइट। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखिए यहाँ पे एक 2 का पेयर बन रहा है और यहाँ पे एक 2 का पेयर बन रहा है। ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, और ये अंदर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। सो कैन बी राइट हियर, कैन बी से AF इज 4√6 सेंटीमीटर में दिया है, तुम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका AF 4√6। AF हो गया यहाँ पे आपका, देखिए 4√6। अब AF मिल गया, बट हमें क्या निकलना था CD। सो कैन वी से AF इक्वल्स टू CD। व्हाई AF इक्वल्स टू CD? सी बिकॉज यहाँ पे देखिए ACDF इज quadrilateral is a rectangle, we already proved. So we can say here CD equals to AF। CD किसके इक्वल है, AF के, और क्या हो जाएगा 4√6 के इक्वल हो जाएगा।
और रीजन यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, अपोजिट sides of a rectangle. You can write the reason, opposite sides of a rectangle. ठीक है, therefore you write the last one line here, CD equals to 4√6 centimeter. See, this is our answer completed. ये हमने लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, समझ में आया? प्रैक्टिस कीजिए, आएगा जरूर। ठीक है, और उसे कमेंट्स करके बताइए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, चलिए बाय।